Now we know two charged conductors or charged bodies. Suppose it's a charged conductor or charged body. There's another charged conductor. Suppose it's positively charged and this is negatively charged. Right? If I see these two objects, or let us consider this one as a positive, both the objects are positively charged. If you keep these two objects close to each other, then what you will notice is this object repels this one and this object repels this one. So we say charged objects exert force on each other. We know charged objects exert force on each other without any physical contact. Without any physical contact. Though there is no physical contact, but still the two charged bodies exert force on each other. If they're like charges, then they will repel each other. If they're unlike charges, then they will attract each other. Right? So, if this be a charged conductor, positively charged conductor, and if I ask you to hold another positively charged conductor near to it, what you will have to do is you will have to apply some force on this object. Right? I'll repeat. यहाँ पे एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी रखी हुई, एक कंडक्टर है, स्फीयर है या कुछ भी रहेगा, इसमें ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट किया हुआ है. अभी मैंने आपको बोला, आपके हाथ में एक पॉजिटिव चार्ज दिया, बोला इसको होल्ड करें, तो you will have to exert some force on this object to keep it there. Why? क्योंकि ये जो चार्ज कंडक्टर है, ये इसको रिपेल करेगा, ये कंडक्टर इसको रिपेल कर रहा है, तो ये कंडक्टर उधर भागना पड़ेगा, बट आप चाहते हो ये जो ऑब्जेक्ट है यहीं पर है, तो what you have to do is you have to exert a force on this object in opposite direction, right? Can it be? This is already a charged conductor. I had asked you to hold another charged body, maybe conductor or insulator, close to it. So what you will have to do is you will have to exert some force on this object. Why? Because this conductor repels this, so it has to move towards right, away from this body. But if you want to hold it there, you'll have to exert a force opposite to the force applied by this one. That is, you'll have to exert force towards left as per this figure. So, चार्ज ऑब्जेक्ट के पास में आपने कोई दूसरा चार्ज ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ये उसमें फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, राइट? अगर आपने ये फोर्स हटा दिया यहाँ से, एंड इफ दिस ऑब्जेक्ट इज फ्री टू मूव, ये ऑब्जेक्ट दूर भागने लगेगा, राइट? इफ यू do not apply any force to counter electric force, this object will start moving towards right. और अगर आप चाहते हो कि ये रुका रहे यहीं पे, तो आपको उल्टे डायरेक्शन में एक फोर्स लगाना पड़ेगा, करेक्ट? Okay. Now, work. 9th standard में we have studied the concept of work. वहाँ पे हमने देखा था, if there is some force acting on the object and the object is displaced due to action of that force, then we say some work is done by that force. If you recall, ऐसा कुछ होता था, एक object रखा हुआ, if due to action of this force object is displaced, ये object चल के यहाँ पहुँच गया, suppose by action of force this object is displaced by some quantity, इस figure में यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये जो displacement हुआ था, is, तो हमने work done पढ़ा था, force into displacement, right? बड़ा important सा term है work done. कब कहते हैं हम work done हुआ है? When a force produces displacement in its direction. अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है and that object is moved
ड्यू टू एक्शन ऑफ दैट फोर्स बाय सम अमाउंट, तो वो जो फोर्स है into displacement in the direction of force is known as work done. So work done is what? When an object moves due to action of force, we say work is done by work is done and work done is measured as force into displacement in the direction of force, right? This is what we are saying. ठीक है, so important terms है ये, अभी इस चैप्टर में बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करेंगे हम लोग। तो वर्क क्या होता है? कभी भी किसी ऑब्जेक्ट पे अगर कोई फोर्स लगता है एंड उस फोर्स की वजह से ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होता है, तो हम बोलते हैं कि कुछ वर्क हुआ है। एंड वर्क डन मेजर कैसे करते हैं? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये दोनों कॉन्सेप्ट को क्लब करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फोर्स और वर्क डन को, राइट? तो सपोज दिस वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स करता हूं मैं, वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स। सपोज there's an object, it carries some, suppose there's a conductor on which some electric positive charge is accumulated, right? If I give you another positive charge, यहाँ पे मैंने आपको छोटा positive charge दिया है, एक conductor दिया है जिस पर कुछ positive charge accumulated. If I ask you to move this object from a long distance, बहुत दूर से एक point पे यहाँ पे लेके आने के लिए बोल रहा हूँ, right? If I ask you to move this object from a long distance, बहुत दूर से, suppose infinite distance है, यहाँ तक लाने के लिए बोल रहा हूँ, तो क्वेश्चन इज विल यू हैव टू डू सम वर्क? क्या आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा? तो आंसर इज यस। व्हाई? बिकॉज ये इसको रिपेल कर रहा था, तो उस रिपल्शन को ओवरकम करके यू विल हैव टू मूव दिस ऑब्जेक्ट, दैट मींस यू विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स। आपको उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा, वो फोर्स लगाओगे आप और ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फोर्स है, डिस्प्लेसमेंट है, इसके लिए कुछ वर्क होगा। तो आई रिपीट, एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर मैंने रख दिया है, आफ्टर दिस gave you another charge conductor which again carries a positive charge। यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है उसको, मैंने बोला इसको बहुत दूर से दिया हुआ, लेट अस अज्यूम इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट से मैंने आपको बोला इसको यहाँ लेके यहाँ तक आना आपको, तो आपको यहाँ आने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज सपोज अ लॉन्ग डिस्टेंस, आई यूज अ वर्ड इनफिनिटी, दिस इज सिंबल फॉर इंफिनिटी, टू सम पॉइंट ए। ये इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक आप लेके आओ, राइट? तो मैं यहां लिखूंगा ऐसे, टू मूव चार्ज क्यू लिख देता हूं, टू मूव चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी, बहुत दूर से लेके आ रहा हूं मैं, टू पॉइंट ए, टू पॉइंट ए। Work has to be done, is done by external agency और force, या शायद वो आप हो या कुछ भी हो। तो मूव चार्ज क्यू फ्रॉम इंफिनिटी, वो इनफाइनाइट पे एक चार्ज रखा हुआ है, वहां से आपको पॉइंट ए तक उस चार्ज को लेके आना है, यहां से यहां लेके आना है। तो ये काम करने के लिए आपको कुछ वर्क करना पड़ेगा, आप हो या कोई दूसरा है, कोई एजेंसी है,
उस एजेंसी को कुछ वर्क करना पड़ेगा, राइट? कन्विंस्ड? ओके। अब देखो मैं डिफाइन करूंगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बड़ी इंपॉर्टेंट सी वर्ड बोलूंगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स हैं, हायर सिलेबस में आपको बहुत डिटेल में पढ़ने मिलेंगे, अभी इतना अच्छे से नहीं समझेगा, बट स्टिल आई विल सजेस्ट कुछ एक स्टेटमेंट्स में बोलूंगा, उनको तो दिमाग में अच्छे से डाल के रख लो। हाँ? तो भले ये पूरी ओवरऑल चीजें ना समझ में आए, बट आप थोड़ा थोड़ा सा फील करो। इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं तो फोर्स लगाएंगे, लाइक चार्जेस है तो रिपल्शन होगा, अनलाइक चार्ज है तो अट्रैक्शन होगा। फिर मैंने बोला आपको कि अगर फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क डन होता है। दिस वी हैव स्टडीड इन 9th स्टैंडर्ड आल्सो, दो इट वाज लिटिल डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, बट स्टिल वी रिमेंबर अ लिटिल ऑफ इट कि फोर्स था, डिस्प्लेसमेंट था तो वर्क डन होता था, हम कुछ वर्क करते थे। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, दोनों को इलेक्ट्रिक फोर्स का और वर्क डन निकालने की को रिलेट करने की कोशिश करना। तो एक पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर दिया मैंने, एंड आई हैव गिवन अ स्मॉल अगेन पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर which is kept at a long distance, maybe infinity पे रखा हुआ, and I ask you to move it from here to some point A. So you will have to apply some force for the same. अगर लाना है आपको तो ये रिपेल कर रहा तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कुछ वर्क होगा। ये स्टेटमेंट यहाँ लिखा मैंने। To move charge Q from infinity to point A, some work is done by external agency, right? अब एक वर्ड लेके आ रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन इन मूविंग exactly 1 coulomb charge, right? 1 coulomb charge, in fact plus 1 unit positive charge becomes plus 1 coulomb charge from infinity. ये लिख लो आप चाहे तो 2 is electric potential of that point. I'll repeat. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। तो वर्क डन इन मूविंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मींस व्हाट? plus 1 coulomb charge from infinity to any point is known as electric potential of that point. मतलब समझाने की कोशिश करूंगा मैं जी। फिजिक्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक स्टेटमेंट बोलूंगा मैं। फिजिक्स में आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे डेफिनेशंस ऐसे डिफिकल्ट लगती होंगी, बट एक्चुअली बड़ी सिंपल होती है। आप एक सब्जी खरीदने जाओगे, आप बोलोगे ये आलू कैसे दिया, राइट? और एनी ऑब्जेक्ट से शुगर, ये शुगर कैसे दिया? तो व्हाट ही सेज इज पर केजी इतने का है, राइट? व्हाई ही सेज पर केजी? बिकॉज ही इज नॉट अवेयर ऑफ हाउ मच क्वांटिटी यू वांट। सो व्हाट ही सेज इज कि पर केजी इतना। अब आपको 5 केजी चाहिए तो मल्टीप्लाई कर लो। ही सेज 40 रुपीस पर केजी, यू वांट 5 केजी, तो यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू मल्टीप्लाई 40 by 5 for 200 रुपीस। इफ ही सेज if you want to buy 10 kg तो 40 into 10 400। तो बिल्कुल ऐसे ही है। बट एक स्टूडेंट का सवाल था यहां से यहां लाने में वर्क डन कितना होगा, तो मैंने क्या बोला, आप कितना चार्ज ले आ रहे हो मुझे नहीं मालूम, मैं बता देता हूं आपको कि अगर 1 कूलम चार्ज लेके आओगे तो इतना वर्क होगा। मैंने बता दिया वर्क डन पर यूनिट चार्ज कितना है वो बता दिया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज ये मैंने बता दिया। इस सपोज 5 जूल, मैंने आपको बता दिया वर्क डन पर यूनिट चार्ज वो कितना मैंने बता दिया आपको, सपोज इज 5 जूल। अब आपको मैंने बोला, मेरा क्वेश्चन हुआ हाउ मच वर्क
how much work is needed to move 20 coulomb charge from infinity. ध्यान देना, मैंने आपको क्या बोला, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज सपोज +5 जूल. आपसे पूछा हाउ मच वर्क इज नीडेड टू मूव 20 कूलम चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी. तो आपको पता है ये 1 कूलम का है, तो +5 into 20 100 जूल्स वर्क डन हुआ. तो आपको पता है 20 कूलम मूव करने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, 5 into 20 दैट इज 100 जूल, राइट. सो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया है कि आपको कितना चार्ज मूव करना है वो मुझे नहीं पता, तो मैंने एक डेफिनेशन बना दी कि भाई पर कूलम इतना वर्क होगा, एंड दैट क्वांटिटी आई रेड इज टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो वापस बोलता हूँ बड़ा सिंपल वे में कि आपको चार्ज यहाँ से यहाँ लाना है, मुझे क्या मालूम आप कितना चार्ज लेके आ रहे हो. तो आपने पूछा सर मुझे कितना वर्क करना पड़ेगा, आई सेड आई डोंट नो. I'll tell you one thing, if you want to move 1 coulomb then this work is needed. अब आप देख लो आपको कितना मूव करना है. जैसे मैंने यहाँ क्या बोले, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज 5 जूल. तो आपके मन में ये था कि 20 कूलम के लिए कितना लगेगा, आई सेड ठीक है मल्टीप्लाई कर लो, 20 into 100 होगा. तो मैंने आपको जो बताया वो क्या बताया, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और उसी चीज को नाम दिया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूजुअली वी डिनोट बाय V is what work done per unit charge to move it from infinity to any point. अगर आप 1 कूलम चार्ज, इसको 1 कूलम चार्ज को आप इनफाइनाइट से यहाँ तक लाते हैं, तो जो आपने वर्क किया है वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, राइट. So electric potential is what work done per unit charge. अगर मैं इसका यूनिट बोलूं, यूनिट अगर मैं बात करूं तो वर्क डन क्या है, वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल्स, चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम. तो जूल्स पर कूलम, इसको नाम दिया है वोल्ट, राइट. तो यूनिट फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जूल पर कूलम और वोल्ट. कैपिटल V से डिनोट कर देते हैं हम इसके यूनिट को भी, वोल्ट. ठीक है, एक बार फिर बोलता हूं, बड़ा इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है. इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं तो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे. आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज फोर्स ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, मैंने आपको दूसरा एक ऑब्जेक्ट दिया और बोला बहुत दूर से आपको यहाँ तक लाना है, तो मुझे मालूम चला कि आपको उस वर्क करना पड़ेगा. अब यही सवाल था कितना वर्क करना पड़ेगा, तो उसके लिए उन लोगों ने एक डेफिनेशन बना के रखी हुई है. उन्होंने क्या बोला, मैं 1 कूलम का वर्क डन बता दूंगा, बाकी आप देख लो कितना चार्ज आपको मूव करना है. तो योर क्वेश्चन वाज कि हाउ मच वर्क you will have to do to move given charge from a long distance, that is infinity, to this point A. So what they said, he will give you amount of work which is needed to move 1 coulomb plus 1 coulomb के लिए जो work लगेगा that I'll tell you. Rest you calculate how much work is needed as depending on how much charge you have to move, right? So वो term मैंने क्या नाम दे दिया, electric potential. Work done in moving plus 1 coulomb charge from infinity to any point is electric potential of that point, right? एक एग्जांपल पे लिख दिया मैंने बता दिया 1 कूलम को आपको अगर इनफिनिट से यहाँ लाना तो 5 जूल, तो आपको लाना था 20 कूलम, तो आपने 5 into 20 आपको पता लग गया 100 जूल्स वर्किंग. सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैसे डिफाइन किया हमने, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. अगर यूनिट की बात करो तो वर्क डन इज मेजर्ड इन जूल्स एंड चार्ज इज मेजर्ड इन कूलम्स. तो जूल पर कूलम which is also read as volt. Clear? Okay. Now see, electric potential is not very important term. Instead, potential difference is important in your syllabus. Electric potential is important but not in your syllabus. So
more important term is potential difference. So electric potential difference. This is electric potential. It's very important word. Electric potential difference. यह हमारे सिलेबस में बुक में हमारे सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस है और जस्ट potential difference. Those who have already read the book once must have read this many times. It's a very important word. जिसको ये नहीं समझ में आया चैप्टर में बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे. तो potential difference is very 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 important word. टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेन भी किया होगा, बड़ा छोटा सा कहीं पर कोने में लिखा होगा, but this is very important to understand. So potential difference. So as the name suggests, difference means पोटेंशियल मैंने एक पॉइंट के लिए बोला था, पोटेंशियल डिफरेंस तो 2 पॉइंट्स होंगे, राइट? तो सपोज देयर आर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, एंड जैसे यहाँ पे एक पॉइंट ए लिया था मैंने, अभी मैंने 2 पॉइंट लिए हैं ए एंड बी. ये चार्ज यहाँ रखा हुआ है, राइट? बड़ा वाला चार्ज है या कुछ भी है, मुझे मालूम नहीं एग्जैक्टली, बट कुछ तो रखा हुआ है. ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. अगर मैं आपको एक 1 कूलम चार्ज यहाँ पे दूं, कहाँ पे? पॉइंट बी पे, एंड इफ आई आस्क यू टू मूव इट टू ए तक लेके आना है,